السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی مجھے ایک میسیج ملا جس میں روڈ اسکالرشپ کا ذکر ہوا، تو میں نے سوچا کہ چلیں کسی کا بھلا ہو جائے، اسکالرشپ کو تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیتے ہیں۔ یہ اسکالرشپ ہے روڈ اسکالرشپ فار پاکستانی سٹیزن، اور اس کی یہ کمپلیٹ ویب سائٹ ہے، آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس کا لنک ہے، اور اس میں باقی چیزوں کو آپ اگنور کریں۔ یہاں پر آپ اگر آ جائیں تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن یہاں پر موجود ہے۔ آپ یہاں سے سب سے پہلے ابھی یہ جان لیں کہ یہاں پر یہ اسکالرشپ کب اس کا جو اپلیکیشن کا ڈیٹ ہوگا وہ آن ہوگا، وہ ہے 1 جون 2026۔ تو اس کا مطلب ابھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی سے آپ تیاری کر سکتے۔ 1 جون سے اپلائی سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد آپ نے بیفور کلوزنگ دس اپلیکیشن فارم یو ہیو ٹو سبمٹ آل یور ڈاکومنٹس۔ مزے کی بات بتاؤں تو 5 اگست 2026 سے پہلے آپ نے وداؤٹ اینی فی آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ اس پلیٹ فارم پر آپ جو ہے یہاں پر آپ کو یہ جو بٹن ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے، یہ ابھی کمنگ سون ہے، انشاءاللہ 1 جون کو یہ اویلیبل ہوگا، اور یو کین سمپلی اپلائی فار دس اسکالرشپ۔ اچھا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹ انفارمیشن آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں، اس کا PDF فارم ہے یہاں پر، اور یہ PDF فارم آپ اس کے ویب سائٹ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آلریڈی موجود ہے انفارمیشن فار کینڈیڈیٹس ان پاکستان۔ تو اگر میں یہاں پر جاؤں کہ یہ روٹس کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے، تو یہ جسٹ کنٹری سمجھ لیں کہ یہ کنٹری ہے۔ تو کیا آپ اس کنٹری پاکستان کا سٹیزن ہے تو یو کین اپلائی فار دس اسکالرشپ، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی یہاں پر ایک ایلیجیبلٹی کا ایک چیکر ہوتا ہے، جس میں آپ جسٹ یس یا نو میں چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے تو یس آئی ایم فرام پاکستان، اس کے بعد آپ نے انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کی ہے یا آنے والے وقت میں حاصل کریں گے 2027 سے پہلے 26 کے یہاں پر کوئی ڈیٹ مینشن ہوگی، اس تک آپ پہنچیں گے کہ نہیں۔ اس کے بعد سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ کا GPA کتنا بنتا ہے، اس سے تو 3.7 یا اس سے وہ ہے، سو یو آر ایلیجیبل۔ آپ ٹرائی کریں، وہ چیک کرے جسٹ آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو وہ چیک کرے گا۔ لیٹ سپوز میں یہاں پر آتا ہوں سلیکشن کرائٹیریا کے سیکشن میں، اور یہاں پر سمپلی چیک یور ایلیجیبلٹی اینڈ اپلائی۔ اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اسکرین جو آئے گا وہ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کنٹری سلیکٹ کریں گے، تو لیٹ سپوز میرا کنٹری ہے پاکستان، کلیئر ہے۔ اب اس کو کلک کریں گے چیک یور ایلیجیبلٹی، تو سمپلی آپ کے سامنے یہ آئے گا اسٹیپ نمبر 1، 5 اسٹیپ ہے۔ سو آپ پاکستان سے، اوکے، آپ کی نیشنلٹی، تو کیا آپ پاکستان پاسپورٹ رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں تو یس۔ کیا آپ کی ایجوکیشن پاکستان کے کسی ادارے سے کم از کم 4 سال ہوئی ہے، اور زیادہ مطلب 10 سال، 12 سال، 16 سال، تو ہماری تو ساری تعلیم پاکستان سے ہے، تو یس۔ اچھا، ایج جو ہے نا وہ سمپل یہ ہے کہ آپ 18 سے 23 میں بلانگ کر دیں کہ نہیں، یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ مطلب ان بٹوین ہیئر، سو یو کین ریڈ اٹ، ویری سمپل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایج اس میں اندر آتا ہے، تو یو کین سمپلی یس۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے، اچھا یہاں سے بھی آپ کے ڈگری سے وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے، اوکے۔ یا لاسٹ اسٹیپ جو ہے کہ یور اکیڈمک اچیومنٹ، will you have completed undergraduate degree normally bachelor by جولائی 2027؟ کیا جولائی 27 تک آپ ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے؟ تو ایف یس سو یو کین۔ اگر اس سے زیادہ مطلب ایکسیڈ کر دے تو پھر آپ اس پہ کلک کر کے اپنا آکسفورڈ کے ٹائم لائن کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کینڈیڈیٹ ول ہیو اے ہائر چانس successful admission to Oxford if they have a first class honor degree
or GPA 3.7 or higher, so yes. So now continue it, and you will see the screen, and you meet the eligibility criteria for the Rhodes Scholarship for Pakistan. Find and more to apply. तो यहाँ से फिर ग्रेट न्यूज़ है कि आपके आंसर की बुनियाद पर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सिंपल क्या है, आप 1 जून पे इस वेबसाइट पे आके अप्लाई करें, सिंपल, विदाउट एनी फ़ी, ठीक है। तो आसान तरीका है, आप यहाँ पर इसको चेक करें। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी वहाँ पर येस के, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। सिंपली इसके बाद जो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसी लिंक पे जाना है और बिफोर 5 अगस्त से इस पर नो एप्लीकेशन फ़ी है, सबमिशन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट भी ऐसे हो कि मतलब ज़ाहिर सी बात है सही डॉक्यूमेंट हो, कोई फेक वगैरह ना हो रजिस्टर। अच्छा, ये क्या आपसे मतलब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एविडेंस, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जैसे प्रूफ चाहिए वो, एजुकेशनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसक्रिप्ट, DMCs, जितने कोर्स आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिस्ट, CV। अच्छा, CV उन्होंने टेम्पलेट यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड की है, सो यू कैन सी दिस टेम्पलेट। अब इसको डिटेल में रह के बिल्कुल सिंपल ये टेम्पलेट है कि आपने इस तरीके का CV बनाना है। मतलब CV में आपका क्या होना चाहिए, ये टेम्पलेट कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रीसेंट जितना भी एक्सपीरियंस है उसको सबसे पहले हाईलाइट करें। उसके बाद आपके जो भी रज़ाकाराना तौर पे आप जो कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। उसके बाद आपने कोई प्रेजेंटेशन पब्लिकेशंस की उसको शेयर करें, एवार्ड्स आपने लिए है वो शेयर करें, आपके कोई स्किल है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम हॉबीज़ है या अदर कोई अचीवमेंट है तो लास्ट में वो शेयर करें। तो आपके 2 पेज से ज़्यादा CV नहीं होनी चाहिए। ये टेम्पलेट में ऐसा नहीं कि आप इस तरह का टेम्पलेट बनाएं, लेकिन ये है कि आप तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन ये जो है ना इधर उधर सी बात है या प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करने, ये चीज़ें बस उसमें ऐड करनी है, ठीक है। रीसेंट जितना एक्सपीरियंस है, वॉलंटरी आपने कुछ किया है, पब्लिकेशन कुछ है, तो दिस सिंपल टेम्पलेट यू कैन ईजीली क्रिएट दिस लाइक CV, ओके। अच्छा, फिर आपने 4 रेफरेंस जो लेटर मिलते हैं यूनिवर्सिटी से वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप जहाँ पढ़ रहे हैं अभी वहाँ से आपने 4 लेटर को उठाने हैं, वो अपलोड करने हैं। एकेडमिक स्टेटमेंट आपने देना है और पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब क्यों जा रहे हैं, और अपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी देने हैं। इस पर भी अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। बस ये सिंपल एप्लीकेशन में आपसे ये डेटा मांगेगा एंड यू कैन अप्लाई, ओके। फिर यहाँ पर की डॉक्यूमेंट्स क्या होगी, कॉपीज़ of the following document: a copy of valid NADRA, ठीक है, passport and transcript of university, higher matriculation, intermediate, CV, कोई रिसर्च जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, कोई पब्लिकेशन, रिवार्ड्स एंड सो जो भी आपने CV मेंशन किया उन सब की प्रूफ चाहिए, ठीक है। या प्रोवाइड ए फुल CV should include specific, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें होंगी तो भी आप बस उसमें 4 साइज़ का CV होना चाहिए और उसका ये फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, साइज सॉरी। अच्छा, हेड एंड शोल्डर कलर फोटोग्राफ, और प्लीज़ नोट योर शो ऑफ द समरी ऑफ योर एप्लीकेशन as it will not be available to the section community until after final shortlisting decision have been made. You are selected, this photograph will be used, ठीक है। तो आपने इस तरीके से एक फ़ोटोग्राफ लेना है जिसमें आपका हेड एंड शोल्डर्स कलर फोटोग्राफ हो, ठीक है। कलर फोटोग्राफ आप जानते हैं बैकग्राउंड या वाइट या उसका क्या होता है, ब्लू। अच्छा, रेफरेंस यू विल नीड 4 references that you seek their permission before listing their details, मतलब जो भी आपके सुपरवाइज़र है या आपके प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में उनका इंफॉर्मेशन अपलोड करना है। एकेडमिक रेफरेंस, 3 of your reference should be academic. These should be academic who were formally taught, जिन्होंने आपको पढ़ाया है तो बस उनका आप रेफरेंस दें। और कैरेक्टर, एक वो बंदा होगा जो आपके कैरेक्टर रेफरेंस देगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा
सर्कुलर सर्विस लीडरशिप एक्टिविटी आपने कोई की है तो वो बंदा उस मतलब आपका कोई गांव में कोई नाजिम वगैरह है उससे भी ये रेफरेंस आप ले लें, ये मुझे जानता है। उसके बाद आप ये सबमिट करेंगे और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट सबमिट देयर रेफरेंस ऑनलाइन। अच्छा, जिन लोगों का नाम आपने रेफरेंस में दिया है उनको एक ईमेल जाता है, तो आपने इंश्योर करना है कि जिन लोगों का इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो लोग 5 अगस्त से पहले उन रेफरेंस को सबमिट करें और वो ये बात इंश्योर कि हाँ ये बंदा मतलब सही बंदा है, उनको मैंने पढ़ाया है और इसका कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है। तो उनसे ये आप करवाए, उनको एक ईमेल जाता है। फिर ये इस पे अगर आप कंफ्यूज है तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करें। और फिर आप अपने यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ दियर रेफरेंस एंड सेंड ईमेल रिमाइंडर, इवन आप उनको दोबारा भी रिमाइंडर भेज सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल स्टेटमेंट यू विल नीड टू प्रोवाइड अ पर्सनल ऑफ नो मोर देन 1000 वर्ड्स इज़ योर चांस टू टेल योर स्टोरी एंड योर ओन वॉइस। आप कौन हैं, आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ स्टडी, योर CV, रेफरेंस लेटर विल बी प्रोवाइड बस सब्सटेंटिव डिटेल ऑफ योर कमिटमेंट्स। मतलब ये सारी चीज़ें आपने पर्सनल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व करनी है। क्यों जा रहे भाई? अच्छा, जो क्वेश्चन है एंड योर पर्सनल स्टेटमेंट अप टू 1000 वर्ड्स वी आस्क यू to address each of the following guiding question by viewing them into the narrative your statement। मतलब अब आपने ये अप्लाई करनी है तो ये आप किसी आम जगह में नहीं कर रहे हैं, ये आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल आपको पता है, तो इन्होंने जितनी चीज़ें यहाँ पर इस PDF में लिखी है ना, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं अगर बताऊँ भी तो आपको पढ़ना है। वो क्यों, आपको पता है अक्सर हम स्कॉलरशिप के जब अप्लाई करते हैं वो ब्लाइंडली करते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्होंने जो भी बात यहाँ पर की, अगर वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में नहीं मिली तो बस आपकी बात ख़त्म, आप रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ इसको ज़रूर इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस सो ऑन। अच्छा, there is no single right model for every 120 year personal statement have been diverse ever changing। ओके, सो फिर इसके बाद आप कोर्सेज चूज़ करेंगे। एकेडमिक स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए इसको आप थोड़ा सा रीड कर ले, ये कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आपको समझ नहीं आता तो आप ChatGPT से कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। अबाउट द रूट स्कॉलरशिप फिर भी आप चेक कर ले कि ये बहुत ओल्डेस्ट प्रोग्राम है, 1902 से ये तकरीबन स्टार्ट लिया इसने, और प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है पूरी दुनिया में। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड वैसा नाम तो काफ़ी बड़ा है, तो उसका स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाता है दैट्स योर लक, ठीक है। एक्सेलेंस इसमें एकेडमी के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव। अच्छा, यहाँ पर देखिए किन लोगों का चांस ज़्यादा होता है। एफ दे हैव ए फर्स्ट क्लास ऑनर्स और GPA 3.7, ठीक है। सो एनर्जी टू यूज़ टैलेंट, मतलब वहाँ वो लोग जाते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि हम एकेडमी में चले जाए, हम काम करें, तो ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और काइंडली बिफोर 5 अगस्त 2026 आप सारे अपनी चीज़ें अपलोड कर लें, ठीक है। और ये थी कुछ टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन जो मुझे अभी मिला, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा या थोड़ा सा भी आपको लगा है कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।